السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ سفاق اسرائیل اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کرتا ہے، یہ تفصیلات آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ آئین میں ترمیم کی خواہش مند حکومت ناکام تو ہوئی ہے لیکن مایوس نہیں ہوئی ہے۔ پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے کا۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے تحریک انصاف کو اسلام آباد ماڈل پر جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ جلسہ گاہ کے لیے پھر شہر سے دور مویشی منڈی مختص کر دی گئی۔ طویل شرائط نامہ بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کو مینار پاکستان کی بجائے قصور روڈ پر کہنا مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے لیے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلسے کے لیے 44 SOPs بھی متعین کیے گئے۔ اس سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو سپہر 5 بجے تک جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جسٹس طارق ندیم نے چیف سیکرٹری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری صاحب، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ آج جو لوگ منصب پر ہیں وہ ماضی میں اپوزیشن میں تھے، آپ تب بھی سروس میں تھے اور آج بھی سروس میں ہیں۔ ہمیں چاہیے اس ملک کے لیے کچھ اچھا کر کے جائیں۔ آپ لاہور میں جلسے کے لیے 2-3 جگہ مختص کر دیں تاکہ عوام کو مشکلات نہ ہو۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ آئی جی پنجاب صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ایسی توقع نہیں کرتے۔ کیا آپ سیاسی جماعت کے ورکر کو ہراساں کر رہے ہیں؟ جس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ ہماری طرف سے کسی کو ہراساں نہیں کیا جا رہا، ہماری طرف سے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب کی ہائی کورٹ میں یقین دہانی کے برعکس تحریک انصاف کو اسلام آباد کی طرح لاہور جلسے میں بھی رکاوٹوں اور پکڑ دھکڑ کا سامنا ہے۔ لاہور پولیس نے مینار پاکستان جلسے سے پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں، ڈیروں اور دکانوں پر چھاپے مارے اور ورکرز کے 2 روز کے دوران شاہدرہ، کوٹ لکھپت، مناوا، کینٹ، ہربنس پورہ اور ڈیفنس میں کریک ڈاؤن کر کے 80 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ خبروں کے مطابق پولیس نے شاہدرہ میں انجینئر یاسر گیلانی کے گھر اور کزن کی فارمیسی پر چھاپا مارا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما حماد آوان کے گھر پر چھاپا مار کر بھائی اور کزن کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کے گھر پر بھی چھاپا مارا۔ ڈیفنس پولیس نے بھی تحریک انصاف کے 12 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں غلام مصطفیٰ، تصور حسین، غلام محی الدین کو نامزد کیا گیا۔ دوسری جانب اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے 42 رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کے لیے محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھجوایا گیا۔ پولیس کی جانب سے بھجوائی گئی فہرست میں میاں اسلم اقبال، میاں محمود الرشید کے بیٹے میاں حسن، مہر جاوید، وقاص امجد اور ندیم بارہ کے نام شامل ہیں۔ فہرست میں خواتین ورکرز کے بھی نام شامل ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فہرست میں شامل افراد افواج پاکستان کے خلاف انتشار پھیلاتے ہیں۔ ان افراد کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا ان کی 90 دن کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ادھر اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر کی قیادت میں درجنوں اراکین پنجاب اسمبلی نے مینار پاکستان جلسہ گاہ کا دورہ کیا تو وہاں دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور پولیس کی بھاری نفری نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے مینار پاکستان میں شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام گیٹس پر تالے لگا دیے، جبکہ مینار پاکستان جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ آپ نے چابی چھینی ہوئی ہے ڈرائیور کی، کیوں پکڑی ہے چابی؟ قانون کے تحت میرے آپ نے چابی کون سے قانون کے تحت پکڑی ہے؟ کتنی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں؟ ساری گاڑی جتنی لین پکڑی ساری پکڑی ہوئی۔ کل رات سے ہم لوگ تانے میں۔ جی ناظرین، پنجاب حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے جلسے پر شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں اور صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کال سامنے آئی ہیں۔ ان آڈیو کالز میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے میں کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔
पंजाब हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात के बरक्स PTI कल लाहौर में जलसे के लिए पुरज़्म है और कहा है कि अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। बानी PTI ने एक रोज़ पहले अडयाला जेल में सहाफ़ियों के सामने दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि लाहौर में 21 सितंबर को होने वाला जलसा आर या पार है। पूरी पार्टी को कह दिया कि हुक्मरान जो मर्जी कर लें वो बाहर निकलें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जलसे से रोका तो जेलें भर देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने भी वार्निंग दी है कि कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हिमाकत न करे। उन्होंने बताया कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी इंटरचेंज से काफिले को लीड करेंगे। उधर लाहौर जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। PTI क़यादत ने हर उम्मीदवार को 500 कारकुन को साथ लाने की हिदायत की है, जबकि रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ ले जाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब PTI के लाहौर जलसे की तैयारी करते खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हायर एजुकेशन मीना खान की जो है वो पुशअप्स की एक वीडियो यानी डंड पेलने की वीडियो सामने आई है। वायरल वीडियो में वजीर हायर एजुकेशन के साथ ISF और यूथ विंग के कारकुन भी मौजूद हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन ने कहा है कि मरियम नवाज अता तारड़ को बताना चाहते हैं कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है और अब आपको हम लिए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमें ज्वाइन किया है जनाब शौकत बसरा साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन कर लेंगे। शौकत बसरा साहब, क्या अभी भी वो रुकावटें हैं? क्या अभी भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है? अली भाई, जब मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी तक हमें NOC जारी नहीं हुआ। इसके बावजूद कि 5 बजे का टाइम दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है। तो जाहिर है ये जो हुकूमत है सियासी तौर पर मफलूज हो चुकी है, अवाम इनके साथ नहीं है, टांगें कांप रही हैं। और हालत ये है कि हमारे लाहौर के अंदर नो गो एरिया बना दिया गया है। लोगों के घरों में रेड हो रहे हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी आपने खुद चलाए हैं शॉट्स। और हालत ये है कि पूरे लाहौर को अब कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। मैं एक दफा पूछ लूं अपने रिपोर्टर से, हमें DC ऑफिस के बाहर मौजूद है, वो अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ NOC? अभी तक। अच्छा, गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं इस वक्त DC ऑफिस के बाहर। गुलाम शबीर साहब, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे इस वक्त? मैं देख रहा हूँ कुछ कारकुन भी मौजूद हैं PTI के, NOC का इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी, और PTI के वकला भी वहां पर मौजूद हैं। अगर हो सके वो बात कर सके तो उनसे भी बात करवाइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो PTI के जलसा के हवाले से तो 3 घंटे के बाद जो है वो मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 3 घंटे में जो है अपोजिशन लीडर और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो PTI के जितने भी वकला विंग है और उनके जो है DC सैयद मूसा रजा के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। और 3 घंटे के अंदर जो सबसे पहले जो है वो जगह का तयन किया गया था कि जगह जो है उनको काना 9 में जो है आरजी मवेशी मंडी जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पर जगह दी जाएगी। और उसके बाद जब ये जगह का तयन हो गया तो उसके बाद आ रहा था कि डेड लॉक बरकरार था कि वक्त जो इंतजामिया की जानब से जो टाइम दिया जा रहा था वो 2 से 5 दिया जा रहा था, मगर जो यहाँ से PTI की जानब से जो वक्त का बताया जा रहा था, जो तकाजा किया जा रहा था वो ये था कि 5 से 11 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक हमें इजाजत दी जाए। मगर ये डेड लॉक 3 घंटे अब जो है वो हाल ये हुआ है कि 2 से लेकर 5:30 बजे तक इस पर जो है दोनों जो है इंतजामिया और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर और PTI के वकला के दरमियान ये तय पाया है कि 2 बजे से 5:30 बजे तक। ये दोपहर 2 बजे इस गर्मी में कौन जलसा करेगा? कौन सी आवाम खड़ी रहेगी? ठीक है, आवाम बड़े जाले भी होते हैं, बड़े वो एंथुसियास्टिक भी होते हैं कि दोपहर की गर्मी में 5 बजे भी गर्मी रहती है। मतलब ये तो शाम ढलते ही जलसे होते हैं। ऐसे एक हफ्ता कबल मीनारे पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जी बिल्कुल। हाँ, मैं इधर एक मैं कमेंट ले लूं शौकत बसरा साहब का, फिर मैं आपके पास आता हूं। तब तक आप जरा ये जो पीछे वकला खड़े हैं PTI के, आप जरा शबीर साहब जरा उनको जरा उनसे बात कीजिएगा। मैं चाहूंगा फिर ऑन स्क्रीन आके उनसे हम बात करें। बसरा साहब, मीनारे पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन जलसा किया है। हाँ जी, उनको क्यों इजाजत दे दी? इसी तरह आगे चलें। आप लोग इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। इदारों के खिलाफ कौन बातें करते हैं? हम तो कहते हैं जिन जिन बातें की हैं बनाएं जुडिशल कमीशन, लाएं CCTV फुटेज सामने। अगर वो बातें की हैं तो हम दोबारा फिर वही करेंगे। कोई इसमें गलत बात नहीं थी। आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान मिसाइल का वाहिद हल आईने पाकिस्तान है। जो रोल उसके अंदर लिखा हुआ है तमाम इदारों को वहाँ जाना होगा। अगर आपने पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, पाकिस्तान को इंटैक्ट रखना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है रूल ऑफ लॉ, वो है आईने पाकिस्तान। आज क्या हो रहा है? आज तो इदारों पर हमला हो रहा है। अमली तौर पर आपकी जो आईनी तरामीम है, ये क्या है
ये इदारों को मफलूज करना, आज़ाद अदलिया पर हमला करना, बल्कि रियासत और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और आज हालत ये है कि जजेस फैसला देते हैं, वो जो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली है, जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट ही नहीं है, जो वोटों से आई नहीं है, जिनका वज़ीर-ए-आज़म मारा हुआ, जिनकी वज़ीर-ए-आला आ रही हुई, वो क्या कहते हैं? कहते नहीं मानेंगे, कहते हैं जजेस बेज़मीर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ से बदतरीन हालात हैं। इस वक्त ख़ास तौर पे पंजाब में, जहाँ मैं दोनों भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे कर्फ्यू है। हम 13 अगस्त को निकले पाकिस्तान का झंडा लेकर और पार्टी का झंडा लेकर। 13 अगस्त को अगर हम आज़ादी का दिन नहीं मना सकते, हमें जेलों में डाल दिया जाए। ये जेल भरो वाली बात भी जो कि खान साहब ने की है, तो मैं इस पर भी आऊंगा। गुलाम शबीर साहब, हमें राना सिकंदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है, नून लीग के रहनुमा है। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा शबीर साहब ये बताइएगा, शबीर हैदर साहब ये बताइएगा कि अभी वकला आपके साथ मौजूद हैं, कौन कौन सी शर्तें? एक शर्त तो ये ना टाइम के हवाले से कि दोपहर 2 से 5:30 तक जलसा रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और कौन कौन सी शराइत हैं जो कि मानी गई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो बड़ी शर्त थी, एक तो थी जगह का तयन, जगह के ऊपर उनका मुज़ाकरात कामयाब हुए, तो उसके टाइम का आ रहा था। 3 घंटे टाइम के ऊपर बात रही। टाइम जो वो मांग रहे थे वो ये था कि 5 से रात 11 बजे या 5 से रात 10 बजे तक वक्त दिया जाए, और उसके बाद जो इंतजामिया की जानब से टाइम दिया जा रहा था वो 2 से 5 था। मगर अब जो कामयाब मुज़ाकरात हुए उसमें 2 से 5:30 बजे तक हुए। इस हवाले से अगर मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये जो PTI जो वकला विंग है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनमें जो है खुरम खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे जो वकला हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात क्या कामयाब पाए हैं, जो 3 घंटे का जो डेडलॉक बरकरार है उसके बाद अभी कामयाब हुए? देखें, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमने जो इन्होंने जो प्रपोज किया है वो मदर पार्टी को भेजा है अमानतन, और लीडर ऑफ द अपोजिशन गए हैं, वो जाके वहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्टी से, और जैसे पार्टी अप्रूव करेगी तो उसके बाद उसको फाइनलिटी अटेन हो जाएगा, और फिर उसको हम अमली जामा पहना देंगे। अच्छा, आपको क्या टाइम दिया गया जिसके ऊपर अगर अपोजिशन लीडर जाके अपनी पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे? वो किस? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक टाइम जो उन्होंने हमें पहले प्रपोज किया, हमने उस पर नेगोशिएट किया, उसके बाद उन्होंने हमारा जो दूसरा हमने उनको एक टाइम दिया, उस पर वो मान गए थे, उस पर वो मान गए। अब जो जलसे का टाइम होता है, जलसे का टाइम दोपहर नहीं होता, मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो हमने ये कहा कि मौसम की सख्ती देखें, आप लोग आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन काफिले आने हैं दूर दूर से, तो लिहाजा आप टाइम वो रखें। जो जलसों का टाइम होता है, जलसों का टाइम अमूमन शाम का होता है, और उसके अंदर आपके 10-11 बज ही जाते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना भी बता सकता हूँ। वो फिर अंदर गए, मीटिंग में गए, पता नहीं किसने कहा और क्या कहा, मैं क्या कह सकता हूँ। दोबारा वापस आए तो वो वहीं पे वापस थे जहाँ पे वो दोपहर का एक टाइम हमें जिससे नेगोशिएट करना चाह रहे थे। बहरतौर हमने उनको ये कुछ शिकें और थी जिस पे हमने कहा कि ये कोई हेड मास्टरों वाला काम आप नहीं कर सकते हैं, ना हम स्कूल में हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। जो आइन कहता है हम उसके पाबंद हैं, और जो कानून कहता है उसके आप पाबंद हैं, तो उसके मुताबिक SOPs बनेंगी और हम उसके हिसाब से। और हमने ये भी उनसे डिस्कस किया कि जो इस्लामाबाद जलसे में किया गया, आपने वहाँ पर जो है कंटेनर्स लगा दिए, बंद कर दिया, और वहाँ पर जो है लोगों के साथ जिस तरीके से वो बता दें सर इतना कि जो आज अभी डिस्कस हुई है टाइम के हवाले से, कौन से टाइम के ऊपर आपका फाइनल हुआ है, और इसके साथ साथ जो जगह का तयन किया गया काना वाला, उसके ऊपर टाइम नेगोशिएट हो रहा है, जगह फाइनल है, टाइम नेगोशिएट हो रहा है। और टाइम में हम ये कह रहे हैं कि हमें, आप अगर ये चाहते हैं कि हम सारे शहर में जलसा करें और पूरे पाकिस्तान में करें, हम तैयार हैं, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें वो टाइम दें जो कि उनसे शाम का टाइम मांग रहे हैं। जो जलसे का टाइम अमूमन कितने बजे होता है जलसा? शाम को होता है, ये गालिबन 5-6 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक 1-2 घंटे की वेरिएशन आती है बीच में। हमने उनको वही टाइम कहा जो एक स्टैंडर्ड टाइम है जलसे का। बहरतौर अभी वो गए हैं, अभी कोई हतमी बात हम नहीं कर सकते इस बारे में, और पूरे पाकिस्तान से लोग तैयार हैं, लाहौर पूरा तैयार है और वाइब्रेंट है। बाकी मैं इनका मशकूर हूँ कि आपकी विसासत से और इस डिले की विसासत से जो हमने एडवर्टाइज करना था अपने जलसे को, ये खुद कर रहे हैं। चलें ठीक है, शबीर हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, DC ऑफिस के बाहर वो वकला की टीम जो कि मुज़ाकरात कर रही है DCO साहब से, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो हम बराह रास्त आपको दिखा रहे थे। राना सिकंदर साहब, शौकत बसर साहब मौजूद है मेरे साथ। राना साहब ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप भी एक सियासी जमात है, ये भी एक सियासी जमात है, जलसे करना सबका हक है, रैलियां निकालना सबका हक है, ये इतनी सख्तियां क्यों सर? और ख़ास तौर पे ये वक्त के हवाले से, आपने खुद भी माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी सियासत की है सर, ये दोपहर 2 बजे कौन सा जलसा होता है सर, वो भी इस तपती गर्मी के अंदर? सर मैं तो थैंक यू वेरी मच जी, बसर साहब बड़े भैया, मैं दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट,
तो मैं बहुत देर से इतनी कारावाल गेस ऑफ कोर्स फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली वाबजू कह सकते हैं। सर देखें, मैं तो समझता हूँ कि आज़ादी इजहार राय और जमहूरी इक़दार जो है, बिकॉज हमने जिस तरह आपने कहा कि हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब पे सख्तियाँ 1990 की एज ए किड आई वाज 4 इयर्स देखी, 1997 की इस पार्टी पे लेके 2008 तक जो 11 साल सख्तियाँ रही, जुल्म रहे, वो देखे, और फिर दोबारा जो 2017 से लेके और आज बसरा साहब बड़े भाई हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 45, काश आरटीएस पे भी ज़रा गुफ्तगू करें मेरे साथ, बताएं कौन सी सीटें कैसे बैठी थी, नहीं बैठी, तो मैं बता देता हूँ। बार कैब सर, मैं क्योंकि एक जमहूरी आदमी हूँ, मेरा ख्याल है कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह सवाबी का जलसे में अलाउ किया गया, तो उसी तरह पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में, मैं तो आज सारा दिन डिफरेंट मीटिंग्स में रहा हूँ, ये डिस्कशन अभी नहीं हुई कहीं, तो ये डीसी साहब से इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है टाइम पे भी एक दो टाइम भी मेरी समझ में भी जो बात हो रही थी, अगर 2 की बजाय 4 का अगर ये चाहते हैं तो दे दें सर, कोई हर्ज नहीं है, 2 घंटे से क्या फर्क। वेल, ये अच्छी बात है कि आप इस खंदा पेशानी का मुजाहरा कर रहे हैं, बट ये सख्तियां कौन इम्पोज कर रहा है सर? अगर आप जैसे लोग मौजूद हैं हुकूमत में और वो नहीं चाहते कि किसी की जो है वो आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगे, तो हु इज दैट एंटिटी जो कि इम्पोज कर रही है सब चीज़ें? कोई, मैं ये समझता हूँ, देखें वो हम सब ही जानते हैं कि इस मुल्क में डिफरेंट टाइम्स पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा उन्हें किन इश्यूज़ का सामना था, बट प्रिसाइजली मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं समझता हूँ कि आज़ादी होनी चाहिए, बट साथ ही साथ फिर हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब हल्की सी सख्त तकरीर करते थे ना, तो तब शौकत बसरा साहब, इनकी पार्टी, ये खुद एज तर्जुमान जो गीत गाया करते थे बाजवा साहब के, जो ये प्रेज किया करते थे उन इदारों को जिनके बगैर ये कहते इनसे ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन तो आज तक ज़िंदगी में किसी से रही ही नहीं। तब के अल्फाज शायद आज अगर दोबारा सुने, मैं पीपल्स पार्टी के इनके टाइम पे नहीं जाता, बट अगर ये सुने कहते हुए अपने आप को और अपने कायदीन को कि इदारों के खिलाफ बात करने वाले गद्दार हैं, तो इन्हीं दोनों से डरना चाहिए जिन्हें ये फेस कर रहे हैं। हमारा तो दिल बड़ा है, हमारे कायद ने हमें कभी गाली देना नहीं सिखाया, इस वजह से हम इनके खैर खा ही रहेंगे बार कैफ एज जमहूरी कारकुन। सही, हमारे भाई हैं और हम कोई ट्रबल क्रिएट। बसरा साहब, सर ये वो लड्डू है जो सबने खाया हुआ है और आपने भी खाया हुआ है। अली भाई, मैं एक तो राना साहब माशाल्लाह यंग लॉट हैं, अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, लेकिन ये बात राना साहब को अपनी लीडर मरियम सफ्दर साहबा को भी समझानी चाहिए कि आपके अगर आप बनी गई हैं जाली सीट के ऊपर चीफ मिनिस्टर, तो बनाए मुझे कौन मार रहा है, हमारे घरों में रेड कौन कर रहे हैं, छापे कौन मार रहा है, लोगों को जेलों में कौन डाल रहा है, और सबसे बढ़कर अगर आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा है राना साहब, तो 1 साल से खुद वो खातून है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जेलों में पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं? ये जमहूरियत है। दूसरी बात उन्होंने कहा RTS, राना साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आज आपकी हुकूमत है, हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, बनाइए जुडिशल कमीशन RTS पे। हम तो आज भी कहते हैं कि बनाइए इसके ऊपर, ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है इसके ऊपर कमीशन बनाइए, लेकिन आप नहीं बनाएंगे। आपको इस बात का पता है कि आप सब लोग टोटल 36 सीटों से जब पंजाब की हुकूमत चल रही है। एक मिनट राना साहब, एक मिनट, आप सिकंदर भाई मैं बात कर लूँ। इनको इस बात का पता है, इनको इसका बात का पता है, एक मिनट, इनको इस बात का पता है कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए डरते हैं, घबराते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, जलसा नहीं करने दे रहे। तो जाहिर है जब आवाम साथ नहीं है तो हम लोग इनको गिरफ्तार करें, हम इनको इजाजत देते हैं। आपको अल्फाज याद है शौकत बसरा साहब, पार्लियामेंट में ये एक दफ़ा जरदारी साहब ने कहे थे मेरा ख्याल है शायद, और एक दफ़ा ये राना सनाउल्लाह ने भी कहे थे, और टीवी इंटरव्यूज में भी कहे थे कि उतना करें जितना कल को खुद बर्दाश्त, मुशाहिद खान साहब ने कहते कि उतना करें जितना कल को बर्दाश्त कर सके। सर तब भी आपको नहीं पता था कि 15 किलो हीरोइन राना सनाउल्लाह के बैग में किसने डाली? आपने नहीं डाली थी, लेकिन आप कहते थे हमें नहीं पता। भाई पहली बात तो ये है कि हम इनको ऑफर करते हैं, केपी हमारी हुकूमत है, आए जलसा करके दिखाएं। कहाँ से करेंगे? बंदे नहीं निकलेंगे। पंजाब के अंदर इन्हें कहें, इनकी हुकूमत ना एक जाली है, इन्हें कहें जलसा करके दिखाएं। पहले मैं जलसे पे आ जाऊं, इनको सिर्फ इस बात, एक मिनट राना साहब, राना साहब बात मुकम्मल कर लूं, राना साहब बात मुकम्मल कर लूं। चले मैं अच्छा राना साहब इंटरप्ट करेंगे, फायदा नहीं होगा। राना साहब करेंगे, फायदा नहीं होगा। अच्छा बात ये है, अभी आपने कहा कि सियासी हुकूमत को जमात
رانا صاحب کس کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں؟ میاں نواز شریف پارٹی کا سربراہ ہے. اگر میاں نواز شریف ہار گیا الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے تو ان میں جیتا کون ہے؟ اگر مریم صفدر جو ان کی بیٹی ہے ان کے لیڈر کی وہ ہار گئی تو ان میں جیتا کون ہے؟ ہاں رانا صاحب کا میں نے پتہ کیا ہے, ان کا فارم 45 جینون ہے. میں آپ کو پروگرام مانتا ہوں اس کی وجہ ان کے ٹوٹل لوگ 36 جیتے ایم پی ایس, 17 جیتے ایم این ایس. اگر ایسی آپ کی حکومت ہوگی تو میرے بھائی آپ کی کامپیں بھی ٹانگیں گی, آپ جلسہ بھی نہیں کرنے دیں گے, آپ جیلوں میں بھی رکھیں گے, لیکن کب تک؟ آپ ججز پہ بھی حملہ کریں گے, صحافی کے لیے. اب میں اس پہ ذرا رانا صاحب کا ٹیک لوں, اس میں میرا سوال بھی رانا صاحب ایڈ کر لیجئے گا. دیکھیں یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ ایسی پابندیاں نہ لگے, ویری گڈ. جلسے کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں نا سر, تو آج جو کچھ عدلیہ کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو نئی قانون سازی کر رہی ہے, اس قانون سازی کو کسی نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا. یعنی کہیں سے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ قانون سازی عدلیہ کی ریفارمیشن کے لیے ہے. ادروائز اٹ وڈ ہیو اسٹارٹڈ فرام دا باٹم, ناٹ فرام دا ٹاپ. تو سر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں سر, تو اس طرح کی چیزیں کیوں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں؟ I will come to Basra صاحب point of view. Thank you very much, انہوں نے انڈوز کر دیا. نہ صرف یہ کہ میں فارم 45 ہوں, یہ صرف بھی آپ کہ کو ہماری کیا چیف ہے, منسٹر بھی میاں نواز شریف اور مریم صفدر کو نہیں کیا. جزاک اللہ, میں مشکور ہوں بسرا صاحب. بٹ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا, اسی حلقے کا 2018 کا رزلٹ انہوں نے مان لیا آج فارم 45 میں رانا صاحب نکالیں اسی حلقے کا رزلٹ اور بیٹھیں بسرا صاحب آپ کی حد تک. چلے وہ اب مکمل کر دیکھیں سر, دیکھیں ایز پولیٹیکل ورکر بسرا صاحب, اگر آپ ٹی وی پہ یہ کہیں, آپ کے حلقے کے لوگ سب سمجھتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ ڈینائی کریں کہ آر ٹی ایس آپ نے نہیں بٹھایا, آئے میرے حلقے کے ہی آپ کو انویٹیشن ہے, NA140 نمبر تھا, 13,000 ریجیکٹڈ ووٹ 236 سے رہی نیشنل اسمبلی کی سیٹ. کیا ثاقب نثار کی بات کروں کہ بھری عدالت میں کہا تھا کہ یہ 8 حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کراؤں تو کیا عمران خان پرائم منسٹر نہ بننے دوں؟ کہاں سے آپ کو یاد کراؤں کہ یہ یاسمین راشد, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کلثوم نواز صاحبہ شہید, اللہ کی مغفرت کرے, تب بھی آپ کہتے تھے کہ میری بات سنیں سر, میری بات سنیں, آپ میری بات ہارے ہوئے نہیں ہیں, ہم نے تب بھی آپ کو ہرایا تھا. ایاز صادق صاحب کا بائی الیکشن 5 دفعہ ایاز صادق نے عمران خان کو ہرایا ہے. اور سر خدا کا خوف کریں, جب آپ نے کہا 4 حلقے کھولیں, ہم نے کھول دیے. اس ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج جنہیں آپ گالیاں نکال رہے ہیں. اس ٹائم پہ آپ ہی کہتے تھے بیٹھ کے, بڑی اچھی بات کی آپ نے ضرور کہ دیکھیں جی اتنے ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز فارم 45 ہیں اور یا فارم 47 ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے ساری کہانی کا. تو اس لیے, اور پھر پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ اگر میں چلا جاؤں, بسرا صاحب بڑے بھائی ہیں, میں ایز پولیٹیکل ورکر ان کے وہ بیانات ان کی تائید کروں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ کلپس بھیجوں آپ کو چلائیں, یا میں ان کی ایز میاں نواز شریف صاحب جو ایسپیریشنز تھی. سوال گندم جواب چنے. پھر میں اچھا میں ایک بات کہتا ہوں, ٹائم کم ہے ہمارے خاندان میں بس. میری بات تو مکمل ہونے دیں, میری بھی بات یہاں سے نکلے گی. بار کہ میں پھر بھی ان کا جونیئر ہونے کے ناطے میں پھر بھی یہ کہتا ہوں, فار دیم مکافات عمل کا لفظ استعمال کروں گا, بٹ لیسنز یہ بے نظیر شہید صاحبہ کی ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے. چلے سر علی بھائی, رانا صاحب کو میں نے کہا, لیکن سر اگر یہ ویلیوز پہ رہیں, میں ایک بات کو مان گیا رانا صاحب کہ یہ ہے مکافات عمل. نہیں سر ایک میرا سوال لے لیں رانا صاحب کو, یہ پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاؤں گا. بہت اچھی بات سر, یہ بہت اچھی بات ہے, دیٹس ویری نوبل آف یو. 1 انچ تنگی آ جائے, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں میں ریزائن کروں گا, آئے میرے پاس. سر یہ ہے مکافات عمل, میں مان گیا رانا صاحب, دس از کارما ہٹنگ them hard. But again, it's a loop. And I'm telling you, sir, if this hitting them hard, it will hit you hard as well. I have agreed with you. اچھا ایک بات, پھر میں کہوں, ایک منٹ رانا صاحب آپ نے بات کر لی ہے, نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب پی ٹی آئی نے کھلی کیمپین کی ہے, میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. رانا صاحب اب ذرا رانا صاحب میں پھر اسی بات پہ آنے لگا ہوں. آر ٹی ایس سر یہ ماننا پڑے گا نا, مانے نا, آج ان کی حکومت ہے نا, فارم 47 کی حکومت ہے, سن تو لیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, چیلنج کہہ رہا ہوں اوپن بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں, انہیں کہیں بنائے اس کے اوپر آر ٹی ایس کے اوپر کمیشن, کیوں نہیں بنا رہے؟ دوسری بات, میں رانا صاحب کو ایک چیلنج دیتا ہوں, کیا میاں نواز شریف اسی بادشاہی مسجد میں, علامہ اقبال پہ مزار پہ, فیصل مسجد میں, قائد اعظم کے مزار پہ کیا قرآن پاک پہ حلف دیں گے کہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں؟ یا رانا صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پہ حلف دیں گے کہ نواز شریف الیکشن جیتا ہوا ہے؟ اگر نواز شریف نے جیتا ہوا تو پوری پارلیمنٹ عوام کے خرچے پہ بھیجتے ہیں عمرے پہ,
काबा भेजते हैं, हम तैयार वहाँ हैं, जाके सब हम कहते हैं तैयार। यहाँ पे हाथ सुने, रखवा ले। सुने, नवाज शरीफ अगर हारा हुआ है राणा साहब तो आप में जीता कौन है? हमारा चैलेंज है। शरीफ जीता हुआ है, ये आप कह रहे हैं। आप हलफ सुने, आप नवाज शरीफ और मरियम सफ्दर का हलफ बादशाही मस्जिद सुन तो ले। हलफ देता हूँ। कौन? मैं देता हूँ हलफ के जीता हुआ है। आपकी बात मैं खुद मान रहा हूँ, आपकी बात तो मैं खुद मान रहा हूँ। जब जीते हुए आपका बाऊ नवाज शरीफ जो कबूतर उड़ा रहा था आवाम ने, तो की बात कर रहा हूँ। हमारे पास वक्त कम है। राणा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त। नवाज शरीफ हारा हुआ है, आई विश आई हैड मोर टाइम। मरियम सफ्दर हारी हुई है। सर ये भी कह रहे हैं, और मैंने तो मशवरा दिया है कि सारी पार्लियामेंट को उमरा करने भेज दें, वहीं पे जाके कसम उठा लें अगर ऐसे ही करना है। बस बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम में नाकामी के बाद हुकूमत के इरादों में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत जजिस के खिलाफ और अदालती महाज पर मुसलसल आईनी और इकदाम उठा रही है। कानून साजी में नाकामी से पहले 8 जजिस की वजाहत में इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह अहकामात दिए गए कि मखसूस नशिस्तों पर PTI के हवाले से जो फैसला दिया गया इस पर अमल किया जाए, मगर कल और आज हुकूमत की जानिब से 2 इकदाम नजर आए। आज काबीना से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया है। ऑर्डिनेंस मंजूर होते ही इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात आगे चलकर बताते हैं। इस वक्त 4 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खुतूत लिखकर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखकर तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तरमीमी एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पंजाब असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। जबकि मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त मोहसिन अयूब और आमना शेख की जानिब से दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि करार दिया जाए मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त न देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। इसी तरह सिंध असम्बली के स्पीकर ने भी इलेक्शन तरमीम के तहत नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए खत लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरसाल कर दिया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। नाज़रीन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था, लेकिन 2 अगस्त को हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली थी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम में कहा गया है कि कोई रुकन असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। ये तरमीम माजी से नाफिजुल अमल होंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि हुकूमत का ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेअसर करने के लिए उठाया गया है। उधर मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं और कानून का जायजा लिया गया। इजलास में कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में बताया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर किसी जमात को सीटें कैसे दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं है। तमाम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में ताहाल कोई फैसला न हो सका। अब ये इजलास पीर को दोबारा हो, जहां मखसूस नशिस्तों की केस और कानून साजी की पेचीदगियों पर इलेक्शन कमीशन सोच विचार कर रहा है। वहीं आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही शामिल नहीं है, जबकि 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था।
गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम करदा जजेस कमेटी इजलास मौखर किया गया और आज ही सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्शन 7B के तहत अब हर अदालती केस और इस पर अपील जजेस की जानिब से जो भी कहा जाएगा इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा और वो तहरीर अवाम को भी दस्याब होगी। ऑर्डिनेंस की शिक 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे इनमें तहरीरी तौर पर बताना ज़रूरी होगा कि यह केस अवामी अहमियत का हामिल क्यों है। इसी तरह शिक 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगी इसके खिलाफ अपील की जा सकेगी। मंजूर ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे इन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वो वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। इससे कबल हुकूमत ने खुद नोटिस के लिए बिल में तरमीम की जिससे चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक खत्म हो गया था, मगर अब एक बार फिर माजी का बिल बहाल हो चुका है। अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बना सकेंगे। अब हुकूमत को तवक्को है कि वो अपनी मर्जी के फैसले अक्सरियती राय से हासिल कर सकेगी। सदर मुमलिकत की जानिब से एक्ट की मंजूरी के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि इस एक्ट का मकसद अवाम को फौरी कानूनी रिलीफ फराहम करना है। 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे। सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फवक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। बात करेंगे इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब सलाहुद्दीन साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सलाहुद्दीन साहब ये अब इस तरह से जो एक अदालत की तरफ से मौक़िफ़ आया है, क्या समझते हैं आपके हुकूमत के पास कौन से मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं या वाकई हुकूमत जो कर रही है जिस तरह से अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन नहीं है? जी शुक्रिया। ये जो आज ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब ने जो जारी किया है उजलत में, ये बिल्कुल एक रिएक्शन लगता है कि जो पिछले दिनों आईनी तरमीम फेल हो गई थी या डिले हो गई थी उसकी रिएक्शन में ये आपको याद होगा कि साल पहले ही इसी हुकूमत से ये सुनने को मिला था कि चीफ जस्टिस, और हमने बड़ी उसको वेलकम भी किया था कि चीफ जस्टिस की जो सवाबदीद है बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको डिवॉल्व करना चाहिए। सिर्फ एक चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि वो हम ख्याल बेंचेस बनाए और पूरी सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। और इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया था कि 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो ही बैठ के बेंचेस की फॉर्मेशन करेंगे। तो आज इनको रातों रात यू टर्न ली और उसमें अब ये कानून में बना दिया कि चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज तो होंगे मगर तीसरा जज जो होगा वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे लगाया जाएगा। तो अव्वल तो ये गवर्नमेंट और जो हुकूमती जमातें हैं उनकी तरफ से यू टर्न है और एक बड़ी सस्पिशियस बात लगती है कि भाई आप जब खुद कहते आए हैं कि चीफ जस्टिस की कंप्लीट डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए तो अब आपको क्यों लगा कि नहीं चीफ जस्टिस की ही डिस्क्रेशन होनी चाहिए। दूसरी बात मैं समझता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गालिबन कोई ऑर्डर आया है कि 5वें नंबर के जो जज साहब हैं उनको नामजद कर दिया है कमेटी में। तो तीसरे और चौथे नंबर के जो जज साहिबान थे मुनीब अख्तर साहब और याया अफरीदी साहब, उनको बाईपास करने की क्या जरूरत पेश आई। आपको याद होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जजमेंट आई थी
تو اس میں قاضی صاحب کا اپنا آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے بڑا اچھا اس لیے ہے کیونکہ چیف جسٹس نہ آئینی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے کبھی بھی پاور کو ایک جگہ کانسنٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے. تو ڈیولیوشن نے اور اسی لیے اس بل کو اپہولڈ کیا تھا کہ یہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان سارے مل کے کریں گے. تو کیا یہ پرنسپل صرف تبھی اپلائی ہوتا ہے جب باقی جج صاحبان سیم پیج پہ ہوں؟ اگر باقی جج صاحبان کا ویو کچھ اور ہو تو پھر یہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ 5ویں نمبر کے جج کو نومینیٹ کرنا؟ اس سے نیچرلی ہر جگہ اس چیز کی تنقید بھی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں جائز تنقید ہوگی. تو سر اس کا رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی امیجیٹلی تو رزلٹ یہ بنے گا کہ جو حکومت کی طرف سے جو کئی اہم مقدمات تھے اس میں حکومت کی یہ خواہش تھی، جو حکومت والے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ایکچولی ایسا ہو رہا تھا، مگر حکومتی پارٹیز میں سے یہ کہتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی تھی وہ ہماری مرضی کی بینچز نہیں بنا رہی تھی. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس آرڈیننس سے مقصد یہ ہے کہ اب آنے والے مقدمات میں مرضی کی جو بینچز ہیں وہ بنانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، فلسطین سمیت پورے مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیلی بربریت کا راج ہے اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد.